हिमटेक्स के तीसरे दिन वी आर विथ ट्रू वे मशीन स्टॉल। हमारे साथ हैं राकेश राठी जी, सुनील राठी जी और सागर भटकर जी। पहले तो आप सभी का स्वागत है सर। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि कंपनी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे आपने सोचा कि लेज़र इंडस्ट्री को चॉइस किया जाए और क्या क्या चैलेंजेस फेस किए सर। My name is Sunil Rathi. So I'm handling the entire all over India sales. So we started 2017. हम लोग 2017 में चालू किया था लेज़र। तो मुझे थोड़ी ऑलरेडी पहले से एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो लेज़र क्या है, इट्स न्यू टेक्नोलॉजी है। मोस्टली बिफोर दैट कस्टमर यूजिंग डॉट प्रिंट टेक्नोलॉजी, अनदर टेक्नोलॉजी। लेज़र इज इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी। You can print any kind of metal and any kind of plastic. This is the permanent marking. You can't be remove any etching, any chemical using. So I think मैंने सोचा कि best technology है for cutting, welding और printing purpose के लिए. Then we can choose the best option for us. So we can start our business over there. What are the challenges you face, sir? Because 2017, after 2017, there was a pandemic phase, and it was very tough time. Challenging phase mostly most of the customer directly we are import from laser so from China, so there's no one manufacturing in India. So there's one challenging we are facing after COVID. So we are then after that we are planning to be manufacturing our own premises. So we all our machines we are manufacturing our own premises. So वो हमारा target था. We face some challenges of spare part, other things also. We blocked for 6 months. We don't have any spare part to manufacture the machine, so we can start our own process. So now we are more capable to manufacturing 40-50 machines in a month. We are dealing in laser welding, laser cutting, laser marking. So definitely we are challenging. We are dependency on China before that, but now is make in India. After this anti-dumping duty, so government imposed, but still जो laser source and heads are not fabricated in the country. Correct. So how you look at this picture of Make in India? Because we are actually most of the industry leaders, they are trying to be manufacturing on laser source still in process. So yeah, some other German the laser source also there. We are using also IPG compared to Chinese. So mostly we recommending Make in India. We are not manufacturing in India. We can import from other Germany and Taiwan laser source we are using right now. Is there any chance that India could also prepare this kind of clean rooms, prepare for these machines? Definitely, after anti-dumping, I think most of the Indian manufacturers they are starting manufacturing on machineries, their own machinery, laser welding, laser marking, all kind of your own premises. So that is main impact to Make in India. We generate lot of employment also, and we are doing all our fabrication our in-house. So a lot of job works outside. We are doing our fabrication works. So maybe it's making India to be grow much faster. So after anti-dumping, the government take a good decision to be ban the Chinese product over there. I would like to ask, what is your experience in this laser industry, and what is the potential application in the recent trend? तो लास्ट 3 to 4 years में in this industry. सो पहले मेरा बैकग्राउंड सर्विस से था, एंड देन राइट नाउ वी आर इन ट्रूवे, सो मैं सेल्स में ही हूँ. तो लेज़र इट्स अ बेस्ट फॉर राइट नाउ दिस कस्टमर. दिस इज अ मल्टीपर्पज यूज, यू कैन बी यूज फॉर मार्किंग एंड दिस फास्ट टेक्नोलॉजी राइट नाउ. और अभी के टाइम पे अगर लेज़र हम देखने जाए तो हर एक चीज़ को इतना आसान कर देती है, इतना यूज़ कर देती है, मतलब फ्री हो जाता है एकदम कस्टमर. सो अभी के बेस में देखा जाए तो I can see there are a lot of machines here, and this is the complete buffet to start a venture, start a business. And I also believe that cost is machines are also very less, and one can start their own business right away. So this is a very important contribution of yours towards Make in India. So how you are presenting this buffet to the customer? So we have some economic model also, because most of the customer telling before we purchase directly from China is very affordable and cost effective. So as per the customer requirement, we also make some cost effective machines over there. So we compete also China also. The same price we can consider. Maybe customer import from directly China, that price we also match in India also. So that's a big opportunity, a big how to say big purpose of us to be complete the
those customers who don't buy the low type of machines, affordable machines. That type of machine we can support from our. राकेश जी, मैं जानना चाहूँगा कि आगे 5 साल आने वाले उसमें आप क्या सोचते हैं, वेयर दिस कंपनी इज गोइंग टू मींस रीच एंड व्हाट इज योर प्लानिंग्स? सर एक्चुअली अगर आने वाले सालों में हमारा ये प्लानिंग है कि जो अभी हमें बाहर से स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, तो अपना टारगेट ये है कि सब इंडिया में ही हो जाए। बहुत से अपने साइंटिस्ट हैं या बहुत से लीडिंग इंडस्ट्रियल्स हैं, वो ट्राई कर रहे हैं कि सब चीज़ें यहीं पे ही मैन्युफैक्चर हो। तो हमारा एक 100% मेक इन इंडिया हो और कंपनी की टेक्नोलॉजी ग्रो करे, और ताकि हम इंपोर्ट भी करें बाहर। जो अभी चाइना लीडिंग हो रखा है, अभी चाहता है कि बाहर के कंट्रीज में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है या मिडिल ईस्ट है या अपना साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इनमें हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। तो ये हमारा नेक्स्ट 5 ईयर्स का प्लानिंग है। सर, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं और आप जब अपने आप को देखते हैं तो आपको क्या यूएसपी अपने आप में दिखती है? ये मैं जानना चाहता हूं। सर कॉम्पिटिटर्स में हमें यूएसपी दिख रहा है कि हम सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक लेते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारा बेसिक एजेंडा है। ये क्वालिटी प्रोडक्ट और कस्टमर सर्विस सेटिस्फेक्शन रहे। सर्विस हमारा 24/7 कस्टमर को दिया जाए कि कस्टमर की रिलायबिलिटी बढ़े। तो ये हमारा बेसिक एजेंडा है। सर, सेल्स इज़ वेरी टफ। मतलब आई बिलीव कि मशीन या कोई भी सामान किसी को बेचना बहुत टफ होता है, और ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें आप कस्टमर को सामान भी शो कर रहे हैं और साथ साथ एक सर्विस भी दे रहे हैं। तो मेरा भटकर जी, आप मार्केटिंग देखते हैं तो कौन सी चीज़ कन्विंस करने में बहुत ज़्यादा टिपिकल होती है? बिकॉज आजकल ऑनलाइन दुनिया है तो सबके पास प्राइजेस होते हैं, और आपका जो प्राइस है किसी से हो सकता है कि डिफर करता हो। तो हाउ यू कन्विंस इन दैट टाइम? पहली बात तो देखिए, प्राइस तो हर एक कस्टमर, हर एक वेंडर देता है अपने अपने प्राइस, बट हम लोग मोस्टली कस्टमर्स को क्या बोलते हैं कि सर आप प्राइस में मत जाओ, आप क्वालिटी में जाओ। सो कस्टमर वहाँ डाइवर्ट हो जाता है। अगर कोई वेंडर उसको प्राइस दे रहा है सो वी कैन मैच, अगर हम लोग मैच भी कर रहे हैं, बट कस्टमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि सर आप ये नहीं, आप ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है उस पर ये सफिशेंट नहीं है। अगर आप बोलोगे कि मेरे को ये चाहिए, तो हम लोग कस्टमर्स को बोलेंगे सर आप इसमें जाओ, जस्ट बिकॉज आपको ये आगे जाके वैल्यू ऐड ऑन करके देगा, मतलब फ्यूचर पर्पस के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहता है कि कस्टमर्स को पहले एप्लीकेशंस देखो कि क्या एग्जैक्टली कस्टमर्स को चाहिए, नीड्स क्या है कस्टमर्स की। सो पहले हमारा वो है, देन वी कैन सजेस्ट द प्रोडक्ट, एंड देन उसके बाद अगर कोई प्राइसिंग में इशू आता है तो वी कैन डिस्कस विद हिम कि क्या हो सकता है बेस्ट, क्या बेस्ट करके दे सकते हैं। सो जितना हमारा रहता है हम लोग उतना बेस्ट करके देते हैं कस्टमर्स को। बहुत अच्छी बात बताई भटकर सर आपने। आप मतलब प्रोडक्ट नहीं बेचते, एक तरीके से आप सॉल्यूशन देते हैं, और सॉल्यूशन जब आप देना चालू करते हैं तो ऑफ कोर्स लोग उसको प्रोडक्ट जैसा नहीं देखते, एक सॉल्यूशन की तरह देखते हैं। और नीड एनालिसिस आप पहले देखते हो कि व्हाट इज़ द नीड। सर, अभी एम्प्लॉयमेंट आज पूरा यूथ पूरा सोचता है कि चुटकी बजाए और सब हो जाए। तो आज मैं देख रहा हूँ कि आप सभी पूरे यूथ हैं, तो आप अपने आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं थ्रू लेजरमैन इंडिया मैगजीन? सर ये मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ अपने यूथ को कि अपने स्किल्स पे बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आज की जो इंडस्ट्री है वो सब स्किल्स बेस्ड इंडस्ट्री है। इफ आपको अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट नहीं समझ में आया, एप्लीकेशन समझ में नहीं आया, रैंडमली यू से एनीथिंग अबाउट प्रोडक्ट, तो कस्टमर को समझ मेरे रिक्वायरमेंट ए आप बी बता रहे हो, दैट्स द मेन थिंग। तो आप कस्टमाइजेशन सोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर का ए एप्लीकेशन है और बी, तो उसको ए में कैसे कस्टमाइजेशन हम लोग दे सकते हैं जो अफोर्डेबिलिटी हो, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो दैट्स अ मेन गोल जो हमारा यूथ है वो लर्न करे, हाउ टू एड वैल्यू टू कस्टमर। तो दैट्स द मेन थिंग। सर, हिमटेक्स जो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आज हम सभी मिल पा रहे हैं, और हम लोग ऑफिशियल मीडिया पार्टनर भी हैं हिमटेक्स के, तो इसका रिस्पांस और इसका जो एक्सपीरियंस है आप बताना चाहेंगे सर कुछ? रिस्पांस काफ़ी अच्छा है सर, और एमटेक्स ने काफ़ी अच्छी गुड अरेंजमेंट किया है। काफ़ी कस्टमर्स भी आ रहे हैं बाहर से, विजिटर्स भी काफ़ी आ रहे हैं, और कंपनीज काफ़ी लगाई हैं। और एक प्लेटफॉर्म मिलता है हम जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को कि अपना प्रोडक्ट शो ऑफ करने के लिए, कस्टमर से रियल टाइम में उनसे इंटरेक्ट करने के लिए। तो गुड प्लेटफॉर्म है सर, गुड फीडबैक मिलता है, गुड हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, कस्टमर्स भी आते हैं, और गुड रिस्पॉन्स रहता है ओवरऑल। सर, लेजरमैन इंडिया मैगजीन जो है सर, इंडस्ट्री के साथ साथ जो एजुकेशन जो है लेज़र, जिसमें लेज़र मशीन्स
या लेज़र टेक्नोलॉजी के कोर्सेज चलते हैं उनको भी हमने ऐड कर रखा है। वहाँ पर भी हमारे जो फ्री कॉपीज़ है जाती है और एक तरीके से एकेडमिया और इंडस्ट्री दोनों का एक छोटा सा टाई अप हो सके और जिससे मैन पावर भी लोगों को एज अ करियर ऑप्शन भी लगे कि मैं अपने बीटेक के बाद या एमटेक के बाद जो है इस इंडस्ट्री में भी मैं आ सकूं, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि ये इंडस्ट्री भी बहुत अच्छे से बूम कर रही है। लास्ट 10 साल में मेरे ख्याल से 30-40% ग्रोथ हो चुका है और अभी जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी आ चुकी है और मेक इन इंडिया अब सब चाहते हैं कि यहीं बनाए। तो ये बात अलग है कि लोग दूसरा चैनल यूज़ कर रहे हैं, कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई मलेशिया जा रहा है, लेकिन हाँ कभी ना कभी यहाँ भी स्टार्ट होगा। तो सर मैं लेज़रमैन इंडिया मैगज़ीन की तरफ से कंपनी और आपको सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं सर कि कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करे और आप आगे बढ़ें सर, बिल्कुल आगे बढ़ें और आपका जो विज़न है, जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो लोगों तक पहुंचे और सर्विस जो आप देना चाहते हैं ना कि प्रोडक्ट, वो चीज़ लोगों तक पहुंचे सर। थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन विद यू।